অবশ্যই এটা রাজ্যবাসীর কাছে সুখবর, কারণ ইতিমধ্যে আমরা জানি যে এই যে ট্রায়াল রান করোনার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে কিন্তু দেশের বিভিন্ন জায়গায় অসম, পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ সেখানে আমরা দেখেছি ট্রায়াল রান শুরু হয়ে গেছে 28 তারিখ 29 তারিখ। কিন্তু আজকে থেকে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের রাজ্যে উত্তর 24 পরগনার 3টি জায়গায় মধ্যমগ্রাম, দত্তাবাদ এবং আমডাঙ্গা এই 3টি জায়গায় কিন্তু করোনা ট্রায়াল রান শুরু হয়েছে। ট্রায়াল রান, ড্রাই রান যাই বলো সেটা শুরু হয়েছে একেবারে। আর করোনা টিকায় ছাড়পত্রও দিয়েছে কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ কমিটি। এটাই সব থেকে বড় এই মুহূর্তের খবর। টিকা কিভাবে দেওয়া হবে তা বুঝে নিতেই সারা দেশেই মহড়া চালানো হয়। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম দেশের এই 4 প্রান্তে 4টি রাজ্যকে বেছে নেওয়া হয় সঞ্চিতা, এবং এই 4 রাজ্যে ড্রাই রান হয়েওছে। দুটো ক্ষেত্রে হয়েছে, 2 ধাপে হয়েছে। এবার উত্তর 24 পরগনা 3 জায়গায় ড্রাই রান 9টা থেকে শুরু হওয়ার কথা। আর বৃহস্পতিবার, শুক্রবার অসম, অন্ধ্রপ্রদেশ, পাঞ্জাব, গুজরাটের 8 জেলায় এই মহড়া চলেওছে, আপনাদের আগেই জানিয়েছি। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশে আজ সারা দেশেই এই ড্রাই রান কিন্তু শুরু হচ্ছে, এবং ইতিমধ্যেই কিন্তু এই ভ্যাকসিন চলে এসেছে। কারণ আমরা জানি যে ইতিমধ্যেই কিন্তু লন্ডন থেকে, ব্রিটেন থেকে সেটি দুবাই হয়ে কলকাতাতেও চলে এসছে। এবং আর যেটা তুমিও বলছিলে যে 9টা থেকে কিন্তু সেই ড্রাই রান শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। বেশ, আমরা সেখানকার প্রস্তুতি কি রয়েছে এগুলো আপনাদের সামনে সকাল থেকে তুলে ধরেছি। আর যেটা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, সাইকোলজিক্যাল দিকটা কিন্তু খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যারা আসবেন এই মহড়ায় অংশ নিতে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা রয়েছে কি কি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে, এরকম সম্ভাবনাও যদি থাকে সেগুলোর বা নিরাময় কি করে সম্ভব, এগুলো কিন্তু চিকিৎসকরা বসে রয়েছে, সেখানে স্বাস্থ্য কর্মীরাও থাকছেন আত্রেই। সেক্ষেত্রে আমরা পরের খবরে নজর রাখি। আত্রেই যেটা আমরা জানাচ্ছিলাম, যেমনটা যে কার্গো বিমানে ইতিমধ্যেই কিন্তু শহরে ভ্যাকসিন চলে এসেছে, এবং লন্ডন থেকে যেটা আমি বলছিলাম যে যাত্রীবাহী বিমান যেখানে দুবাই, এবং দুবাইয়ের পর তারপরে কিন্তু কলকাতায় ইতিমধ্যেই কিন্তু সেই ভ্যাকসিন চলে এসেছে। আচ্ছা, এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন তার প্রতিক্রিয়া আসছে, একটু শুনবো কি বলতে পারি। 8 जनवरी को दुनिया में सबसे पहले कोविड के लिए जो लड़ाई है उसके लिए एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग जो है अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में पिछले साल 2020 में की थी। एक साल सारे देश ने मिलकर लड़ाई लड़ी है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से, सारी स्टेट गवर्नमेंट सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी। तो आपने देखा कि 135 करोड़ के देश में भारत में अभी लगभग 1 करोड़ से थोड़े ही ज़्यादा मरीज़ हुए हैं, उसमें से 98 और 99 लाख के बीच में तो ठीक होकर घर चले गए हैं। दुनिया का हाईएस्ट रिकवरी रेट 96% से ऊपर हमारा है। दुनिया का सबसे कम लगभग फैटेलिटी रेट 1.45% ये हमारा है। और जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, आज आप ही लोग टेस्ट कहते थे, फरवरी के, जनवरी, मार्च के महीने में, अप्रैल तक के महीने में भी आप लोग कहते रहते थे। आज सबसे ज़्यादा 10 से 15 लाख टेस्ट हम रोज़ भारत में कर रहे हैं। 2280 से ऊपर जो है लेबॉर्ट्रीज़ जो है, एक लेबॉर्ट्री से यात्रा शुरू की थी। सब कुछ आपके सामने हुआ है। पीपी किट्स के बारे में, N95 मास्क के बारे में, जो वेंटिलेटर्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में, सब चीज़ों में जो आप तकलीफ़ों की चर्चा आप ही लोग करते थे ना मार्च के महीने में, वो सारी चीज़ों को पार करके और भारत ने सारे दुनिया को ये चीज़ें अब एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। शुरुआती समय में हम लोगों ने वायरस को आइसोलेट करके दिखाया, अब वायरस को कई हज़ार यानी 40-50 हज़ार वायरस तो हमारे रिपोजिटरीज़ में हमने जमा कर दिए। जीनोम सीक्वेंसिंग आज नहीं हमने शुरू की, 6 महीने से हम लोग अपने अपने लेबॉर्ट्रीज़ में जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि अगर एक नया वेरिएंट की बात आई तो वो तुरंत जो है वो, क्योंकि काम हमारा लगातार चल रहा है, उसका भी कंसोर्टियम बन गया। धार्मिक संगठन अफवाह फैला रहे हैं वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए मेरा देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाए। भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है। और शायद सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है,
एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है, और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये अनुभव पहले भी आया है जब भी बड़े वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स हुए। मैं देश वालों को याद दिलाना चाहता हूं कि पोलियो इम्यूनाइजेशन में भी बहुत सारी इस तरह की अफवाहों को फैलाया गया था, लेकिन धीरे धीरे देश के हर व्यक्ति को ये जो भी अफवाह से पीड़ित होने की संभावना थी, उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई बच्चों को अगर अपंग और अपाहिज होने से बचाना है तो ये पोलियो की वैक्सीन लेना ज़रूरी है। और वैक्सीन सबने ली, और उसके बाद भारत जो है आज दुनिया में WHO से सर्टिफाइड पोलियो फ्री नेशन है। सर्टिफिकेशन मिले हुए भी 6 साल हो गए, और आखिरी केस हम लोगों ने 2011 में देखा था, 13 जनवरी को देखा था हावड़ा के अंदर। इसलिए देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बना के। स्टेजेस क्या रहने वाले हैं सर? स्टेजेस किस तरह से আপনারা শুনলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হর্ষবর্ধন, তিনি বললেন যে দেশ জুড়ে আজকে ড্রাই রান চলছে, আর সেই ড্রাই রানের প্রত্যেকটা বিষয়ে তিনি নজর রাখছেন নিজে। সঞ্চিতা আর একটা কথা বললেন যে যদি কোনো রকম সংস্কার এই ড্রাই রান যেটা চলছে ভ্যাকসিনের, সেটা নিয়ে যেন কোনোভাবেই কোনো রকম দুশ্চিন্তা বা কোনো রকম সংস্কার যেন মাথায় না থাকে। এটা একটা ড্রাই রান চলছে, ড্রাই রানে ভ্যাকসিন ব্যবহার হচ্ছে না, কিন্তু পরিকাঠামো কিভাবে কাজ করবে গোটা দেশ জুড়ে, ভ্যাকসিনেশন কিভাবে হবে, সেটাই কিন্তু আজকে মহড়া চলছে।